Welcome all to Dr. MDS Academy. Today in this lecture I am going to solve one conventional numerical being asked in the engineering service exam based on the force transmissibility. Okay, so this is the topic here. Spring damper arrangement with mass M, forced if not sine omega into 2 pulled in downward direction. So various different forces existing here, and the with the help of the D Albert's equations, okay, we can write here the equation something like this. Okay, then after we will move and we will plot all the forces in the graph, reference axis versus y axis. So kx is the spring force, damping force is given as c omega into x, then after inertia force is m omega square into x. Okay, pi is the phase angle. Okay, so with the help of the geometry we can easily find out what is the amplitude existing in the system. Capital X is given by f naught upon k root 1 minus omega upon omega n ka square plus 2 zeta omega by omega n ka whole square. Okay, lastly after solving we will be getting this type of equation. Okay, so this is the partial equations. Okay, similarly the xc means complementary solutions we can easily, so which is given as a sum of complementary plus p becomes absent when it becomes absent zero when there is no external forces exist. One, since in this system, okay, I have considered forces moving in the downward directions, which is given as f naught sine omega into t. Okay, that's why this xp will also be existing. Okay, which is given as this is complete xp and this is complete our xc value. Okay, expressions. So based on that, okay, so finally magnification factor, okay, graph for that, phase angle, okay, very important. Number of optional questions being asked from these graphs. Okay, lastly the transmissibility. What is the transmissibility ratio? Okay, which is given as a finally derived ft r upon f naught. Okay, given as this expressions. Okay, very important. Okay, so we'll be using applying these expressions directly into the questions. Okay, finally these graphs we obtain. Okay, spring control region, damping control region, and then after mass control region. This is very important region. Okay, mass control region. Okay, so let's begin and solve the question. So here is our question. क्या बोल रहा है? A 100 kg machine is symmetrically supported on 4 springs. Okay, capital M is given. Capital M is given 100 kg. The mass of the reciprocating parts is small m given is 2.5 kg. Okay, suppose this is our what diagram I am drawing. This is our base. Okay, we are having what spring एंड वन डैम्पर है ना, इस तरीके का डैम्पर है. इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कैपिटल एम का मास रखा हुआ है, कैपिटल एम का. ओके, 2.5 kg which is moving through a vertical stroke 100 mm with SHM. ठीक है, तो देखा जाए 100 mm SHM. ठीक है, SHM में 100 mm का स्ट्रोक है, यानी कि अप से डाउन तक ये दे रखा है 100 mm, है ना. This is our t time and this is our x amplitude. Okay, neglecting
Damping determine the combined stiffness of the spring so that the force transmitted to the foundation is 1 by 20 of the impressed force. ओके, यहाँ पर देखो स्मॉल एम दे रखा है, इसका मतलब समझते हैं, है ना। स्मॉल एम, कैपिटल एम तो ठीक है, पूरा ब्लॉक का मास है ना, कैपिटल ब्लॉक, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इज नथिंग बट हियर वी आर हैविंग ए, ओके, ये एक स्मॉल एम कोई एक बॉडी होगा, पार्ट्स होगा, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हैं इस बॉक्स कैपिटल एम के अंदर में, जो कि कैसे क्या हो रहा है, डिटरमाइन द, रोटेट कर रहा होगा ना, रोटेट कर रहा होगा इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब इसका हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा क्लियर पिक्चर, है ना, ये हाँ, ये हो गया स्मॉल एम, ये कैसे रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरीके का रोटेट, ठीक है। तभी तो स्मॉल एम की वजह से यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दिस इज आवर के एंड दिस इज आवर सी, ओके। नेक्स्ट क्या डेटा बोल रहा है, नेग्लेक्टिंग द डैम्पिंग, मतलब सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओनली स्प्रिंग इज प्रेजेंट, डिटरमाइन द कंबाइंड स्टिफनेस यानी के स्प्रिंग का, सो दैट द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन इज, मतलब टी ट्रांसमिटेड दे रखा है 1/20 force transmitted to the foundation to the force impressed upon the system, यही तो होता है फॉर्मूला। टी आर दे रखा 1/20, किस केस के लिए, when या नेग्लेक्टिंग डैम्पिंग, यानी कि सी को नेग्लेक्ट करने पर, यहाँ पर नेग्लेक्टिंग द डैम्पिंग, ओके, force transmitted to the foundation is 1/20 of the impressed force, मतलब k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। द मशीन क्रैंक शाफ्ट रोटेट्स एट 850 आरपीएम, यदि ये क्रैंक शाफ्ट है, दिस इज आवर क्रैंक शाफ्ट, जो कि रोटेट कर रहा है, शाफ्ट, ठीक है, रोटेट कर रहा है, क्या आरपीएम से रोटेट कर रहा है, 850 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो दिस इज 850 आरपीएम से रोटेट कर रहा है ना, रोटेशन। इफ अंडर, ओके, यहां तक फुल स्टॉप है। हमें क्या निकालना है, नेग्लेक्टिंग द डैम्पिंग डिटरमाइन द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन इज 1/20 ऑफ द impressed force। सी वी नो क्या नो, force transmitted to the foundation is equal to force impressed upon the system, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, रूट 1 + 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, रूट 1 - ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ओके। दिस वी नो, फ्रॉम वेयर वी नो, already I stated here this formula, okay, derived formula, so that directly I have used this formula for this conventional question। now अब इस केस के लिए पहला इसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमें डिटरमाइन करना है के का वैल्यू, जब नेग्लेक्टिंग द डैम्पिंग मतलब जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी होता है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग डैम्पिंग ओके मीन सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सी इक्वल टू जीरो, तो जीटा का वैल्यू क्या आएगा हियर, दैट इज जीटा इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो वी विल पुट हियर ना,
is equal to 0. The zeta will be equal to 0. Now we will put here in this equation. Okay, 1 और ये वाला 1/20 दे ही रखा है 1/20. Okay, so step by step we will move next. Okay, so put, तो क्या आ गया, पुट करने पे जीटा इज इक्वल टू 0, ऊपर में 1, नीचे में ये वाला क्या, ये क्या हो गया, जीटा इज इक्वल टू 0, दिस बिकम 0 होल, दिस बिकम 0, जीटा इक्वल टू 0. तो ये आ गया 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर. ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, दिस बिकम 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0. ओके, so we will be, finally reaching to this equation. Okay, now तो क्या आ गया हम लोगों का, हमें 1, ये कितना दे रखा है 1/20 है ना, 1 ये दे रखा है ना 1/20, किसके लिए दे रखा है, नेग्लेक्टिंग सी के लिए, तो सी इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं, तो 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर. हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है ना, क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है. यहाँ पर this k we have to determine the combined stiffness k. k, तो k निकालने के लिए क्या होता है, we know that k निकालने के लिए क्या होता है, ओमेगा n इज इक्वल टू रूट k अपॉन m, है ना, कैपिटल m होगा. ठीक, क्योंकि कैपिटल m बैठा हुआ है k के ऊपर में, स्मॉल m नहीं होगा. ओके, दिस इज आवर स्मॉल m. ओके, जो कि रोटेशन हो रहा है और वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है. तो k के ऊपर में जो बैठा हुआ मास कैपिटल m है, तो वी विल डिवाइड विथ m. तो ओमेगा एन हमें निकालना है इस इक्वेशन, तो ओमेगा जानना जरूरी है. तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, रोटेशन है ना, 2 पाई एन अपॉन 60, वी नो दैट. ओके, तो 2 पाई इंटू एन, इन हाउ मच, 850 है क्या, ये स्मॉल एम 850, और आरपीएम में है तो सेकंड में करेंगे, 850 अपॉन 60, तो हाउ मच वी आर गेटिंग, यूज कैलकुलेटर, 2 into pi into 850 upon 60. So we are getting 89.011, okay, रेडियन, और इसे सेकंड में कन्वर्ट किए, सेकंड. ओके, सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा का, तो ओमेगा एन निकलेगा. ठीक है, तो फाइनली 1/20 इज इक्वल टू 1 बाई, या यू कहें, this is our equation from equation 1. okay, 20 इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर. कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से 1 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना. तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, देखो, ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, 1 माइनस 20 है ना, तो -90. ठीक है, और ये वैलिड है क्या इक्वेशन, नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट करेंगे तो माइनस का आई के टर्म में आएगा. ओके, so we will not use this. So what we will be using, we will be using here what, plus minus. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो दिस इज नॉट, वी विल बी यूजिंग, एक प्लस लेके किया तो ये आया, क्या लेके किया, प्लस लेके किया तो ये आ रहा है, विच इज ignored. We will ignore using positive right side value. Okay, now
नाउ यूज, अब कौन सा बचा, पॉजिटिव हटाए, पॉजिटिव हटाए, पॉजिटिव हटाए, ठीक है, तो ये तो हटा दिए। नाउ यूज निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन, क्या आ गया, निगेटिव साइन यूज करेंगे तो 20 इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस क्या आ गया, 1 - ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, 20 इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव इफ आई हैड टेकन ना, पॉजिटिव ले रखा था यहाँ पर, ठीक है, तो ये -19 आया, तो रूट करेंगे -19 का, इट्स नॉट फिजिबल ये, सो पॉजिटिव लेकर आके निगेटिव लिए थे, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पर अब क्या लिए हैं, तो नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है निगेटिव लेने का, तो निगेटिव लिया है, ठीक है, तो इसको इधर भेज दिए हैं, तो 21 इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया, ओमेगा बाई ओमेगा एन क्या आ गया, √21, √21, तो वी आर गेटिंग 44.582, ठीक है, अब हमें क्या मालूम है, ओमेगा मालूम है क्या, यहाँ से, तो ओमेगा एन निकल जाएगा क्या, ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा बाई 4.582, तो क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं, 89.011, कहाँ से, यहाँ से 4.582, तो वी आर गेटिंग 89.011, तो ये आ रहा है 19.423, क्या, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट में आएगा ना, ये सेम यूनिट में आएगा, है ना, ओके, तो ओमेगा एन हमें मालूम चल गया, ओमेगा एन मालूम चल गया, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ओमेगा एन चाहिए ना, ओमेगा एन निकल गया ना, हाँ, ओमेगा एन मालूम चल गया, तो नाउ के निकालना है, नाउ ओमेगा एन इज इक्वल टू √k/m हमें मालूम है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, दिस वन के, तो ओमेगा एन मालूम है हमें क्या, 19.423 इक्वल टू √k, क्या है, हमें तो निकालना है, कैपिटल एम क्या है, मास दे रखा है क्या, 100 kg, ओके, तो पुट हियर 100 kg, तो यू विल बी गेटिंग के वैल्यू हियर, कितना आ रहा है, 19.423 का स्क्वायर इंटू 100, ओके, ये आ रहा है 3775.29, ओके, यूनिट क्या होगा, न्यूट SI, SI यूनिट में वी हैव टेकन ना ऑल थिंग्स, तो न्यूटन पर मीटर, K इज इक्वल टू P बाय डेल होता है ना, K इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डेल, तो इसका न्यूटन और इसका मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर, ओके, यूनिट, तो वी हैव ऑब्टेन्ड दिस आंसर, वन आंसर, ठीक है, चलो, तो ये तो काम खत्म हो गया हम लोगों का, है ना, इफ if under actual working condition the damping reduces the amplitude of successive vibrations by 30%, ठीक है, ये मतलब कि अब हमें दो एम्पलीट्यूड का, दो कंसेक्यूटिव मीन्स ऐसे है,
ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस द डैम्पिंग रिड्यूसेस, मतलब अब डैम्पर सी यूज कर रहे हैं, पहले केस में के यूज नहीं था, अभी वी आर यूजिंग कैपिटल सी। तो कैपिटल सी करने के यूज में, है ना, तो क्या हो रहा है, द डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड्स ऑफ सक्सेसिव, एम्पलीट्यूड्स मतलब दो एम्पलीट्यूड है, ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशन बाई 30%। मतलब ये यदि 100% था, यदि ये 100% था, ठीक है, तो ये कितना है, ये हम लोगों का 30% है, ठीक है, रिड्यूसेस, ओके, रिड्यूसेस, तो ये 70% हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें 30% ये ऑब्जर्व कर लिया वाइब्रेशन, बचा मेरे पास इतना, ये दिस इज अवर 70%, ओके, नॉट टू स्केल हियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम डिक्रीमेंट यूज करेंगे। क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू 2 पाई जीटा रूट 1 - जीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स नॉट अपॉन x1, ठीक है, इज इक्वल टू लॉन x1 अपॉन x2, ठीक है, इस तरीके से ये चलते जाता है, चलते जाता है, ठीक है। तो हम्म, कैसे होता है ये, ऐसे टी टाइम, और ये हो गया हमें एक्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये यहां से यहां तक का हाइट कितना दे रखा है, एक्स नॉट है, दूसरा वाला जस्ट नेबर, ठीक है, एक्स वन है, ये कितना है, ये कितना है, ये एक्स टू हो गया, इस तरीके से फॉर्म होगा, मतलब धीरे 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 एम्पलीट्यूड हमें घट रहा है। तो ये हो गया डेल, सॉरी, लॉगरिथम डिक्रीमेंट। तो डेल इज इक्वल टू लॉन एक्स नॉट अपॉन एक्स वन कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक्स नॉट यदि 100% दे रखा है, 100% दे रखा है, तो एक्स वन कितना दे रखा है, 30% घटा दो इसका, 70%, है ना। तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, डेल इज इक्वल टू लॉन एक्स, मतलब 100 अपॉन 70 यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है, मतलब 100 हाइट दे रखा है एक्स नॉट का, और एक्स वन का 30% घट गया, मतलब ऑब्जर्व कर लिया 30%, तो बचा कितना, 70 आउट ऑफ 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 70 लॉन, लॉन मीन्स कैलकुलस का लॉन, एल ओ जी नहीं, एल एन, तो दिस इज कमिंग 0.356, ओके, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, अब ये बराबर कितना होता है, 2 पाई जीटा रूट 1 - जीटा का स्क्वायर, ओके, तो यहां से जीटा निकाल सकते हैं हम लोग, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 - जीटा का स्क्वायर अपॉन जीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.3567, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक, स्क्वायरिंग बॉय साइड, ये आ गया 2 × पाई डिवाइडेड बाई 0.3567, ओके, जिस स्क्वायर कर देते हैं इसका स्क्वायर, ये आ रहा है 1 - जीटा का स्क्वायर अपॉन जीटा का स्क्वायर इक्वल टू 310.279, ठीक है। अब 1 - 1 अपॉन जीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू 310.279 +1, ये आ गया, है ना, इनवर्स रूट
ये आ रहा है जीटा का वैल्यू 0.05667। ठीक है, ये आ रहा है जीटा का वैल्यू। ओके, ये मेरे पास ये आया। पहला क्या बोल रहा है, द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, हाँ, इफ द if under actual working condition the damping reduces the amplitudes of successive vibrations by 30%। ठीक है, ये हो गया खेल। फाइंड पहला द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एट 850 आरपीएम। ठीक है, हमें निकालना है एफ टी आर। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, transmissivity ratio is equal to force transmitted to the foundation to the force impressed upon the system। ठीक है, हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन मींस एफ टी आर, है ना। हमें एफ नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, टी आर इक्वल टू इसको एफ ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। ठीक है, तो हियर ये निकालने के लिए बोला है। तो एफ नॉट क्या है, मतलब कि इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है जो इम्प्रेस्ड कर रहा है, वो रोटेशन वाला बॉडी। कौन सा रोटेशन, ये तो इम्प्रेस कर रहा है ना, प्रेस कर रहा है के और सी को, इसी को बोलता है फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम। ठीक है, ये दबा रहा है के और सी को, तो स्मॉल एम यूज होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है ना, छोटा सा बॉडी है जो कि कैपिटल एम के अंदर में है, दिस इज आवर स्मॉल एम। यदि ये हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक एफ या यू कहें, यहाँ नीचे की तरफ एफ नॉट क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यदि ये रोटेट हो रहा है, ए यदि बी के ऊपर चला गया तो फोर्स ऐसे जाएगा आफ्टर 180 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर में एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर फिर आएगा। तो मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अप एंड डाउन ये कर क्रिएट कर रहा है। ओके, सो एफ नॉट इज इक्वल टू एम, हाउ मच स्मॉल एम गिवन, स्मॉल एम गिवन इज 2.5, 2.5 ओमेगा, ओमेगा कितना है, मतलब ये कितने ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा 850 आरपीएम के अकॉर्डिंग कितना आया था, 89.011, 89.011, 89.011 स्क्वायर, ये किस में था, आरपीएम में था, 60 में कन्वर्ट किया था रेडियन पर सेकेंड। चलो ठीक है, ऐसा यूनिट में है, नो प्रॉब्लम। आर, आर क्या है, आर जो है, बी केयरफुल, आर इज व्हाट, एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का आर बोलते हैं। कितने रेडियस पे हो रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया, है ना, कितने रेडियस से ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा हमें क्या दे रखा था, स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, ये 100 दे रखा, तो ये हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा, ये हाफ कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, दिस विल बी एक 50 mm, है ना, तो 50 mm क्या हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गया ना, रेडियस यानी कि 50 mm, तो इंटू 10 50 इंटू 10⁻³ y-3 मीटर। ओके, so this is our what, radius m omega square into, calculate it, 2.5 into 89.011 का
होल स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ का, हाँ -3 ओनली, ये आ रहा है 990.369, व्हाट इज न्यूटन। ओके, सो 2.5 इंटू 89.011 का होल स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो 990.369। ओके, दिस इज न्यूटन। तो हमें ये निकालना है। अब देखो, नाउ पहला वाला सॉल्व करते हैं। फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम, हमें ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल ए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ए फॉर्मूला, दिस इज आवर कैपिटल यूनिवर्सल फॉर्मूला। ओके, सो वी विल बी यूजिंग now using equation a. Okay, what is the a? 1 plus 2 zeta omega by omega n का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो एफ टी आर हमें निकालना है। एफ नॉट निकाल चुके हैं क्या यहाँ से, है ना? 89 रखे हैं। क्यों रखे हैं 89? क्योंकि पहला केस बोला फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एट 890 आरपीएम पे। तो 890 आरपीएम यदि वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा 890 आरपीएम वैल्यू पुट करेंगे, 890 आरपीएम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वी विल बी गेटिंग ओके दिस मच इन ओमेगा फॉर्म। ओके, so we are getting 990.369। ओके, चलो, तो रूट 1 प्लस 2 इंटू जीटा, जीटा कितना निकाला मैं? 0.05 इंटू 0.56, बस इतना ही वैल्यू पुट करते हैं अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, पॉइंट 0.056। ठीक है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या है? ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? 89 पॉइंट, क्योंकि 890 आरपीएम पे बोल रहा है, 89.011 अपॉन ओमेगा एन कितना है? ओमेगा एन कितना है? 19.423 फ्रॉम हियर, 19.423, 19.423, 19.423, ये आ गया इसका पूरा होल स्क्वायर। रूट में नीचे 1 माइनस ओमेगा कितना है? 89.011 अपॉन ओमेगा एन कितना है? 19.423। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला आ जाएगा, ये वाला फॉर्म, ये वाला जो आएगा, ये वाला दिस वन, ये आएगा ना, 2 इंटू 0.056 इंटू 89.011 डिवाइडेड बाई 19.423 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब राइट साइड वाला को कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है? 2 इंटू 0.056 इंटू 89.011 डिवाइडेड बाई 19.423। ठीक है, ये इतना आया का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है
रूट भी कर देते हैं। ये आ रहा है 1.124 ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट 89.011 divided by 19.423 ठीक स्क्वायर 1 माइनस आंसर स्क्वायर। तो रूट में आ रहा है 400.07 प्लस 2 इंटू 0.056 इंटू 89.011 डिवाइडेड बाय 19.423 ओके का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 0.263 ओके। तो रूट ऑफ 400.07 प्लस 0.263 रूट ठीक है। ये आ रहा है रूट इन्वर्स करते हैं 1.124 तो दिस इज कमिंग 0.05617। So finally FTR coming is 0.05617 into 990.369. So into 990.369. So answer finally coming is 55.635 Newton. So this is our first answer. Okay. So first we have solved. Okay. Answer coming is 55.63 ठीक है। तो आंसर इसका कितना आया 55.63 न्यूटन। ओके दूसरा है द फोर्स ट्रांसमिटेड एफटीआर ही निकालना है यहाँ पर भी ठीक है टू द फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के ऊपर दिस इज आवर फाउंडेशन ठीक है। द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एट रेजोनेंस मींस कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर बोल रहा है क्या एफ टी आर का वैल्यू होगा। ओके तो फर्दर हम लोग चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है एफ टी आर इज इक्वल टू एफ ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन निकालना है अपॉन द इम्प्रेस्ड अपॉन द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है 1+2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर एट रेजोनेंस पे बोल रहा है एट रेजोनेंस मींस एट रेजोनेंस हियर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन दिस इक्वेशन तो इफ टी आर इक्वल टू इफ नॉट इक्वल टू है ना क्या आ गया 1+2 जीटा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन कैंसिल आउट का होल स्क्वायर नीचे में ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का हो
इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 0। दिस इज 2 जीटा का होल स्क्वायर। रूट के बाहर आ जाएगा तो वही का वही हो जाएगा, क्या आएगा 2 जीटा, है ना, 2 जीटा ये आ गया हमें। तो यहाँ पर जीटा का वैल्यू कितना है, एफ टी आर हमें निकालना है। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट यहाँ पर निकाल चुके हैं क्या, लेकिन ये देखो एफ नॉट हमें जो निकाले हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा कौन सा है, 890 न्यूटन पर, सॉरी 890 रेडियन पर सेकेंड पर है, ठीक है, लेकिन हमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पर निकालना है। ओके, तो ओमेगा एन कितना है, ना कि ओमेगा लेंगे, ओमेगा एन का वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। ओके, यहाँ पर ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन का वैल्यू कितना है एट रेजोनेंस, क्या निकाले हैं वैल्यू, 19 पॉइंट समथिंग निकाले थे, 19 पॉइंट हियर ना, 19.423, we will put this value, ठीक है, 19.423 रेडियन पर सेकेंड एट रेजोनेंस, ठीक है, वैल्यू एक बार और चल 19.423, ठीक है 423। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम कितना है 2.5, ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर ये वाला लेंगे दिस वन, अब बदल जाएगा यहाँ पर, सो डोंट डू मिस्टेक हियर, क्योंकि रेजोनेंस पे बोला है निकालने के लिए, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर तो वही होगा, है ना, जो हम लोगों का 50 था, है ना, उसके लिए कुछ नहीं बोला है, नो चेंज, 50 mm, तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर में एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या आ गया 1+2 इंटू जीटा, जीटा कितना निकाला था मैं 0.05 ऐसे करके निकाले थे क्या, जीटा का वैल्यू, हाँ ये यहाँ पर है 0.056, है ना, हियर 0.056, 0.056 अपॉन 2 इंटू 0.056, तो हमें आ जाएगा एफ टी आर कितना आ रहा है 1+2 इंटू 0.056 रूट 2 इंटू 0.056, ओके, इंटू 2.5 इंटू 19.423 का होल स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ so this is coming 443.99 न्यूटन, ओके, 1+2 इंटू 0.056 इसका होल स्क्वायर था ना, इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, तो 1+2 इंटू 0.056 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट निकालो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.056 ये आया इंटू 2.5 इंटू 19.423 का होल स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ ये आ रहा 423, आंसर इज
423.67 Newton. So this is the +1 2 into 0.056 into 2.5 into 19.423 का स्क्वायर into 50 into 10⁻³ okay, so this is our second question's answer. Okay, so this is our second question answer. 423.67 423.67 so 423.67 Newton. लास्ट क्या बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट रेजोनेंस, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, यानी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए थर्ड बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो एक्स का वैल्यू हमें जानते हैं, इफ नॉट अपॉन के मालूम है क्या, इज इक्वल टू अपॉन रूट 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मालूम है और एक्स का वैल्यू निकालना है। इफ नॉट मालूम है, इफ नॉट क्या मालूम है, लेकिन किस पे बोल रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट रेजोनेंस, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन पे, ओमेगा इज इक्वल टू एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन ना, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन की ये 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो दिस इज 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन 1, ठीक है, होल स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा, ये आ गया, तो इफ नॉट अपॉन के इंटू 2 इंटू जीटा, ठीक है, इफ नॉट क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा कौन सा होगा, एट रेजोनेंस पे ओमेगा एन लेंगे ना कि ओमेगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि एट रेजोनेंस पे बोला है, एट रेजोनेंस पे बोला है क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए एक्स, ओके, 2 इंटू जीटा, ओके, नीचे में के है, ओके, तो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, एम क्या है 2.5 स्मॉल, ओके, ओमेगा एन कितना था 19 पॉइंट, ओमेगा एन कितना था 19.423, ठीक है, हियर 19.423 19.423 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 50 ना, इंटू 10⁻³ मीटर में, ये 50 था ना, ये 50 था ना, हाँ, ओके, के कितना है, के निकाले थे क्या, के निकाले थे ना पहले क्वेश्चन से पहले, ओमेगा एन के बाद निकाले थे के 37725 37725 37725.29, ओके, कितना है, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ, इंटू 2 इंटू, हाँ, के कितना है 37725.29 इंटू 2 इंटू जीटा,
0.05 ऐसे करके निकाले थे जीटा, क्या एक्चुअली था वैल्यू? जीटा 0.056, 0.056। सो कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 0.056 वर्स कर देते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 19.423 का स्क्वायर इंटू 50 इंटू 10⁻³ so answer is coming 0.0111 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में था ना, यदि mm में करते हैं 11.16 mm। So this is our answer of question of third one. Okay, so in this way you can calculate, determine the force transmitted to the foundations, okay, at resonance or without resonance, and what is the amplitude, इसका आंसर कितना है? 11 mm approx, okay, and amplitude of the vibration at resonance, okay. So this question being asked of 20 marks in 2017, okay. So one more lecture I am going to take over this subject, on this subject, okay. So stay connected with this channel. Thank you all.